And the title of my message is this morning, और आज की सुबह मेरे संदेश का जो शीर्षक है Keep Moving Forward. वो है आगे बढ़ते रहे। Keep moving forward. आगे बढ़ते रहे। Church, as believers, we always hear the word of God Sunday after Sunday, Sunday after Sunday, Sunday after Sunday. But when we come to Monday, we do not think of Sunday and we look behind and say, God, how this week is going to go? और हम विश्वासी होने के कारण हम जब चर्च आते हैं तो रविवार पे रविवार हम संदेश को सुनते हैं, पर जैसे सोमवार आता है तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमारा आने वाले हफ्ता कैसा रहेगा। So life is a journey filled with constant change and transition. हमारा जो जीवन है ये एक यात्रा है जहाँ पर हमेशा बदलाव होता ही रहता है। As Christians, we often find ourselves at the crossroads, और हम ईसाई होने के नाते हम अपने आप को हमेशा चौराहे पर पाते हैं। unsure of which path to take or how to move forward. हम ये नहीं जानते कि हमें कौन सा रास्ता को चुनना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। In these moments of uncertainty, और ये जो है ऐसे हम निर्णय जब नहीं लेते, remember, my dear brothers and sisters, coming to the Lord, turning to the Lord will help you in your path. तो मेरे भाई और मेरे बहन आप हमेशा याद रखें कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके जो रास्ते हैं वो हमेशा बदलेंगे। God's words provides us guidance. परमेश्वर का वचन जो है वो हमें गाइडेंस It provides us comfort. वो हमको एक आराम देता It है, provides us strength. वो हमको सामर्थ भी देता है And it allows us to go ahead. और वो हमें सामर्थ देता है कि आप आगे बढ़ते रहे। The Bible is filled with many verses which will really help us in our day-to-day living. और हमारे पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सारे वचन हैं जो हमें रोज की जिंदगी में जीने के लिए मदद करते हैं। And these verses will help you to move forward. और ये जो वचन है हमारी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। Always it will help you to go ahead, not behind. और हमेशा ये वचन हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे, पीछे So नहीं in करेंगे। order to walk in front, in order to move ahead, हमें जब आगे बढ़ना है we have to remember that our words which we are going to read every day, which we meditate upon it day and night, has to minister to us every day. तो हमें ये स्मरण रखना है कि जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचनों पे हम मनन करते हैं, वो हमारे आगे अगुवाई करेगा। In order to embrace that new beginning of walking ahead, और जब हम आगे बढ़ने की नई शुरुआत जब हम करते हैं, we have to trust in God totally, 100%. तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना You है। cannot say, God, I will trust you and then do according to what you want to do. तो हम परमेश्वर से ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हम तुझ पे भरोसा करते हैं। God wants your trust 100% in Him. परमेश्वर को पूरा 100% आपका विश्वास उसमें If चाहिए। you want to move ahead, you trust in Him totally. तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पूरी तरह से उस पर विश्वास If करना you है। see the people of Israel, when God removed them from the Pharaoh's land, अगर आप इस्राएलियों को देखिए, जब परमेश्वर ने उनको फारो के देश से निकाला था, in the book of Exodus, जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, God allowed them to go ahead. परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ने ही दिया, Because God had promised them something. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे एक वायदा किया था। In the same way, God has promised you something when you accepted the Lord as your personal Savior. और उसी तरह परमेश्वर ने आपसे भी एक वायदा किया है जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया। In the book of Isaiah, chapter 43, verse 18 to 19, it says, यशायाह की किताब इसका 43 अध्याय वचन 18-19 में ऐसा लिखा है, you know, you have to embrace God's promise for a new beginning. आपको परमेश्वर का जो वायदा है वो नई शुरुआत के लिए उस पर आपको खड़े रहना है। It says, forget the former things, do not dwell on the past. वो वचन कहता है कि जो बीती हुई घटनाओं का आप स्मरण मत करें। He says, forget the former things. जो पुरानी बातें हो चुकी है उसको स्मरण ना करें, Do not look behind. पीछे ना देखें। You know, the angels of the Lord came to Lot and said, परमेश्वर के दूत है वो लूत के पास आकर उन्होंने they कहा, said, come on, move from here, leave Sodom and Gomorrah. दूत ने उनसे कहा कि सदोम और गोमोरा को तुम छोड़ दो, Do not look behind. पीछे मुड़ के मत देखना, I am going to do something. मैं कुछ करने पर हूँ। But what did Lot's wife do? पर लूत की बीवी ने क्या She किया? turned behind उसने पीछे देखा, to see what's happening. वो देखा कि And she पीछे क्या हो became रहा a है, pillar of salt. और वो नमक का खंबा बन गया। Church, this morning I want to tell you, आज की सुबह कलीसिया में कहना चाहता you हूँ, have to forget the former things that just move ahead. जो भी पुरानी बातें हैं आपको उसको भूलना है और आपको आगे बढ़ना Do है। not creep about the things which were there with you in the past. जो चीजें पीछे हो चुकी है उसके बारे में आप सोचते बड़बड़ाते ना रहें। Do not dwell on your past. जो आपकी पुरानी बातें उसके ऊपर आप मनन ना करें। You know, I see people when they are giving testimonies, they say,
when we say give a testimony, जब हम लोगों से कहते हैं कि आप आगे आगे गवाही दें, they go 20 years back. वो 20 साल पुरानी बात And है। they say, once upon a time I was here and the Lord chose me and brought me here. तो वो कहते हैं कि 20 साल पहले मैं कोई दूसरे स्थान पे था और आज परमेश्वर मुझे यहाँ ले आया। But Isaiah 43 verse 18 says, पर यशायाह 43 ऐसा कहता है you have to forget the former कि things. पुरानी जो बातें हो चुकी है उसको आपको भूलना है। You do not have to dwell on your past. तुम्हारी जो पुरानी बातें उसके ऊपर आपको मनन या दिल नहीं लगा। God says, see, I am going to do a new thing. वचन कहता है कि मैं कुछ नया करने पर You missed the chance to say amen. See, I am going to do a new thing. आप परमेश्वर यहाँ पे कुछ नया करने पर है। When? पर कब? When you go home. जब आप घर जाएंगे। Not this घर. ऊपर के घर. No, he says now. परमेश्वर कहता है कि अभी। Now. अभी। When you are sitting here, whatever is in your mind, remove it and say, God, you are going to do a new thing. अब जब आप यहाँ पे बैठे आपके मन में जो भी बात चल रही है आप उसका स्मरण ना करें पर कहे कि परमेश्वर तू नया करने पर है। Now it springs up. अभी जो है आप करने वाले हो। Do you not perceive? आप जो है वो पुरानी बातों को धरे ना This is a very favorite verse of me. I am making a way in wilderness. परमेश्वर का मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि मैं रेगिस्तान में एक रास्ता बना रहा हूँ। Whenever I read this word, it reminds me something. और जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ चीज याद आती है। When your roads are rough, जब हमारे रास्ते खराब होते हैं, when you do not know what is your destination, अगर आपको पता नहीं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा, when you do not know what is going to happen, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, proclaim these words and say, Lord, you are going to do something new now. तो आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें और कहें कि परमेश्वर आप कुछ नया करेंगे और अभी करेंगे। And he says, I am making a way in the wilderness and streams in the desert. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं रेगिस्तान में रास्ता बना रहा हूँ और झरनों को खोल रहा हूँ। Amen. God is going to do something, church. परमेश्वर कुछ करने पे है कलीसिया। You don't have to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत You have to proclaim the word and the promise which God has given you. आपको बस परमेश्वर के वायदे को उसके वचनों की घोषणा We करनी है। forget the word and the promises which God has given us and we say, oh God, how can I move ahead? परमेश्वर के वचन को हमेशा भूल जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मैं क्या करूँ आगे। I tell people, do not question God. मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर से प्रश्न ना पूछें। God will do something great which never ever you have imagined in your mind also. परमेश्वर ऐसी अद्भुत बातें अपने जीवन में करेगा जो कभी आपने उसकी कल्पना ही भी नहीं की है। Amen. So remember, church, this morning. तो कलीसिया आज की सुबह आप हमेशा इसको याद Do रखें। not remember your past. आप अपने भूतकाल को याद ना Do रखें। not remember what has gone behind. आप उसको याद ना रखें कि पीछे क्या हुआ। But remember what new thing is going to do. पर आप हमेशा याद रखें कि कौन सी नई बात होने पर है। Because your God is a great God. क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। He is not a small God. वो कोई छोटा परमेश्वर He नहीं doesn't है। say give something to me, then I will give you something. वो ऐसा नहीं कहता कि तुम मुझे कुछ दो फिर मैं उसके बदले कुछ दूंगा। He says just come to me as you are. परमेश्वर कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास As you आओ। are. जैसे हो वैसे ही आओ। You know, if your sins are crimson red, do not worry. अगर तुम्हारे जो पाप है वो एकदम लाल है तब भी कोई फर्क नहीं Do not worry about that thing. उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। Just come with a heart of repentance and say, God, here I am, as we sang this song this morning. और आपको बस जब आपके हृदय से परमेश्वर के सामने आना कहना है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। This powerful verse reminds us something. ये जो शक्तिशाली वचन हमें कुछ याद दिलाता है। That God is constantly at work in each and every one of our lives. परमेश्वर निरंतर हर किसी के जीवन में कार्य करता है। Creating opportunities for a fresh start. वो तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने की Every day is a new day. हर दिन नया दिन है। Every moment is a new हर moment. क्षण नया क्षण है। Every hour is a new hour. हर घंटा नया घंटा होता है। Every second is a new second for you. हर सेकंड जो है वो हमेशा नया ही He is होता है। going to do something new and He is going to give you new opportunities for a fresh start. वो कुछ तो नया करेगा, कुछ नए मौके वो तुम्हारे जीवन में लाएगा ताकि तुम नई शुरुआत कर A सको। beautiful example. इसका बहुत सुंदर उदाहरण ये है Joseph. यूसुफ। He was sold by his brothers उसको उसके भाइयों ने ही बेच दिया था। from pit to prison. उसको गड्ढे में डाला था, वहां से वो जेल में गया। Pit to palace, palace to prison, prison to palace. उसको गड्ढे से जो है वो पैलेस में भेजा गया है, महल में भेजा, महल से उसको जेल में गया, जेल से फिर वो महल में आया। He didn't cry. पर वो रोया नहीं। He didn't crib. उसने बड़बड़ी भी नहीं की। He didn't
say, "Oh God, you chose me, you put me there, you gave me that dream which I told my brothers and they put me into the pit." He didn't say a word. उसने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं अभी तूने मुझे कहा मुझे गड्ढे में डाल दे, तूने तो मुझे काफी सारे स्वप्न दिखाए थे, दर्शन दिए थे और मेरे भाइयों ने मेरे साथ भी किया कि मैं गड्ढे में हूँ। But he accepted everything what was coming in his way. पर जो भी उसके रास्ते में आया उसने हर किसी को Trusting in God that God is going to do something great for him. और उसने परमेश्वर पर निरंतर भरोसा किया और विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ महान करने पर है। And then he was made a governor. और फिर वो जो है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री उसको बनाया गया। Church, whatever your situation is whatever your situation you are going through this morning, कलीसिया आज जो भी परिस्थिति आपकी जो चीज से आप गुजर रहे हैं, remember your Father's eyes are not closed. आप हमेशा इसको स्मरण रखिए कि आपके पिता की आंखें कभी बंद नहीं होती। He says, "My eyes run to and fro." परमेश्वर ये कहता है कि मेरी आगे जो है आपको आगे पीछे घेरे रखी His eyes are running even now here when we are sitting and worshiping Him. उसकी आंखें अभी भी आपको देख रही है जैसे हम उसकी आराधना करते हैं। He did not keep a track. Joseph did not keep a track. यूसुफ ने जो चीजें हो रही थी उसके बारे में उसने सोचा नहीं, उसका ट्रैक उसने नहीं रखा। He did not record what his brother did, उसने ये स्मरण भी नहीं रखा कि उसके भाइयों ने उसका क्या किया, but he just moved on. पर वो सिर्फ आगे बढ़ता Okay, गया। this morning there is a challenge for you and me. कलीसिया आज की सुबह आपके और मेरे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। Amen. God, whatever happens, He's not going to leave you. चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। Even in wilderness, He will stand with you. और रेगिस्तान के स्थान पर भी वो आपके साथ ही खड़ा है। Even if you are thirsty in the wilderness, He will provide water for you. अगर आपको रेगिस्तान में प्यास भी लगती है तो आपके लिए पानी भी वहाँ पुराएगा। You are not serving a God who is dead. आप ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते हो जो मरा हुआ है। You are not serving a God who is blind आप ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते हो जो अंधा है or a deaf या फिर बहरा है or who doesn't have hands, या फिर उसके पास हाथ नहीं who है, doesn't think about you, जो आपके बारे में सोचता who नहीं, doesn't say, "Give me something, then I will give you something." जो ऐसा कहता है कि पहले मुझे कुछ दो फिर उसके बदले में कुछ दूंगा। But He says, पर वो कहता है, "However you are, I will accept you." वो कहते हैं जैसे तुम हो मैं वैसे तुम्हें स्वीकार You करूंगा। have to come to Him with your heart open for a change in your life. आपको बस अपने खुले हृदय से उसके पास में आना है ताकि आप अपने जीवन में बदलाव 2 देखें। Corinthians chapter 5 and verse 17 says, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन कहता है, "Therefore, if anyone is in Christ, he is the old creation." Yeah, Pastor Joshua is attentive. He immediately said no. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, सो यदि कोई मसीह में है he is a new creation. तो वह नई सृष्टि है। What the second line says, the old has gone. Correct? The old life is gone, a new life has begun. पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। Oh, what a wonderful verse. You know? Old life has gone पुरानी बातें बीत गई and a new life has come. और नई बातें सब नया हो गया है। This scripture shows us the power of our relationship with God. ये वचन हमें हमारे रिश्ते का जो सामर्थ्य है वो दिखाता है। This God's promise of a new beginning is not a one-time offer. ये जो नई शुरुआत की बात परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक बार की ऑफर नहीं आपको। You know, you get offers on 26 Jan, 26 50% discount, 30% discount. 26 जनवरी को आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। 15th August, 26 Jan. 15 अगस्त, 26 जनवरी। This is not one-time offer. ये एक बार का सिर्फ ऑफर नहीं है। Once it is given, it will never be taken back from you. एक बार ये अगर दे दिया गया इसको दोबारा परमेश्वर नहीं लेगा। So as we move forward in faith, और जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, we should be rest assured that He will not leave us nor forsake तो us. हमें ये विश्वास रखना है कि ना वो कभी हमें छोड़ेगा, ना वो कभी हमें त्यागेगा। He will never leave us, neither forsake us. वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। The second point is दूसरा मुद्दा ये है, finding strength in faith हमें विश्वास को जो है वो ढूंढना है during turbulent times. जब चीजें बिगड़ती है, When your times are not good, when it is shaky, when there is a storm in your life, जब आपका समय सही नहीं होता, आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, you should have that faith in your God. तो आपको अपने परमेश्वर में विश्वास रखना है। You should have that faith which will move mighty mountains of your life. आपको ये विश्वास रखना है कि आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े पहाड़ों को हट जाएंगे। Change can be daunting. आपका जो बदलाव है वो हो सकता है कि बहुत कठिन हो। Yes, it can be daunting, but our faith provides an anchor
during that time of हो turbulence. सकता है कि जो बदलाव है वो बहुत कठिन हो, पर हमारा जो विश्वास है वो आपको एक ताकत देगा। The disciples in the boat, जो चेले जो उस नाव में थे, and the boat was in the middle of the sea. और वो नाव जो थी वो समुद्र के बीच There में was थी। going to happen something in that sea also. वो समुद्र में कुछ तो वहां होने वाला था। They were so frightened. They were never expecting something is going to go wrong with them. वो इतना डर गए थे, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उनके साथ कुछ गलत होगा। Heavy storm, heavy wind. बहुत तूफान वहां पर आया, But they see Jesus walking on that water. पर उन्होंने देखा कि यीशु में से उस पानी पर चलकर आ रहा है। Peter wanted a change, and Peter walked on that water for some time. पतरस को जो है वो बदलाव चाहिए था, और कुछ क्षण के लिए वो भी पानी पर चला। Peter walked on that water without wavering. वो जो है वो पानी पे चला बिना डरे। The time he was looking in the Lord's eyes, he could walk in the water. जब तक वो यीशु मसीह की आंखों में देख रहा था, वो पानी पर चल रहा था। But the moment he removed his sight from the Lord himself, और जैसे उसकी दृष्टि परमेश्वर से हटी, he started sinking. तो वो उसमें डूबने लगा। Church, there is something in this. पर कलीसिया इसमें कुछ है। However hard the situations of your life may be, आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल just हो, focus on the King. आपको बस राजा की ओर देखना Look है। to that cross आपको क्रूस की तरफ देखना where he है, said, "It is finished." जहां उसने कहा था पूरा हुआ। His word will never ever be void. उसका जो शब्द है वो कभी खाली नहीं If he जाएगा। says it is finished, that is finished. उसने कहा खत्म हुआ तो खत्म हुआ। You will never ever face that thing. आप दोबारा वो चीज को कभी उसका सामना नहीं करोगे। Philippians 4 and verse 13. फिलिपियन 4:13 में लिखा He है, says, "I can do all things through Christ who strengthens me." जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Apostle Paul in this powerful verse reminds us something. अपोस्टल प्रेरित पौल इस वचन में हमें कुछ स्मरण दिलाते हैं। It says that we can find faith during our wilderness walk. वो कहते हैं कि हमारी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम रेगिस्तान से भी चले, तो हमको उसमें विश्वास है। If your life has to change, you have to have faith. अगर आपके जीवन को बदलना है तो आपको विश्वास की जरूरत है। You have to say, "I can do all things through Christ who strengthens me." आपको कहना है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Do not become a crybaby. आपको हमेशा रोता नहीं रहना है। Do not become a crybaby, always crying and cribbing. This is not happening, that is not happening. Oh God, where are you? Are you there? Are you listening to me? आपको हमेशा बस रोते नहीं रहना है, नहीं कहना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहना है। परमेश्वर तू कहाँ है? क्या तू मुझे सुन रहा है? As believers, we are always crying. विश्वास होने के नाते भी हम लोग हमेशा रोते ही रहते हैं। How many times God must have done miracles upon miracles in your life, in your family. पता नहीं कितने बार परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार में कितने चमत्कार किए हैं, But one situation, पर एक परिस्थिति you start crying. आप रोने लगते हैं। You say, "God, आप कहते हैं परमेश्वर कब होगा बदल? How it will change, God? ये कब बदलेगा? How can I walk through this, Lord?" मैं इसमें से कैसे गुजरूंगा? Remember every miracle He has done in your life. आप हमेशा वो चीज को स्मरण है कि हर एक वो चमत्कार को जो उसने And आपके when you जीवन में किया। remember that miracles of your life, और जब आप वो चीजों को स्मरण करते हैं, you will be able to proclaim Philippians 4 and verse 13. तो फिर आप फिलिपियों 4:13 की घोषणा करेंगे। I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Another powerful scripture, दूसरा सामर्थ्य वचन, Isaiah 41 and verse 10. यशायाह 41:10। He says, "So do not fear, for I am with you." मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। What a promise. कितना महान वायदा He है। says, "Do not fear, वचन कहता है कि डरो मत for I am with you." क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not be dismayed, for I am your God. इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you and help you. मैं तुझे दृढ़ करूँगा I will uphold you with my righteous right hand. और तेरी सहायता करूँगा और अपने What हाथ a में- promise of God, church. और ये कितना सुंदर वायदा है। We tend to forget these promises. हम ये वचन को हमेशा भूल जाते He हैं। says, "I will never leave you nor forsake you." वचन कहता है कि वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना Do not be त्यागेगा। dismayed, he says. वो कहता है कि इधर उधर मत ताक। Do not think of what you are going through. आप ये याद ना रखिए कि आपके साथ क्या होगा। He says, "I will strengthen you whenever you need me. I will strengthen you." वो कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। Psalmist says, "I will trust in the Lord. I put my trust in the Lord." Oh God, do
not let me be ashamed. भजनकर्ता कहते हैं कि मैं मेरा भरोसा परमेश्वर पे रखता हूँ, परमेश्वर मुझे कभी शर्मिंदा मत होने देना। Do not let me be ashamed. परमेश्वर मुझे कभी शर्मिंदा मत होने Church, देना। He will never allow you to go through shame. कलीसिया स्मरण रखिए कि परमेश्वर कभी आपको He शर्मिंदा will नहीं होने strengthen देगा। you. वो तुमको सामर्थ He देगा, will lift you up. वो आपको ऊंचा उठाएगा। You know, when a child falls, जब बच्चा गिरता है, you see the father running or the mother running. आप हमेशा देखते हैं कि पिता या फिर माता भागकर उसके If an earthly father can take so much of care for his child, अगर संसारिक पिता एक बच्चे की इतना ध्यान रख सकता how है, much more our Father in heaven will take care. तो आप सोचिए कि जो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो कितना हमारा ध्यान He will रखेगा। never allow your foot to stumble. वो तुम्हारे पैर को कभी चोट भी नहीं लगने He देगा। will lift you up in his hands. वो अपने हाथों से तुम्हें उठाएगा। He will say, I strengthen you and I will help you. वो कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। I will lift you up with my righteous right hand. और मैं मेरे धर्मी हाथ से तुम्हें उठाऊंगा। This verse offers us comforting spirit. और ये जो वचन है ये हमें सांत्वना देता है। Remember, our faith is not meant to remove the change. हमेशा याद रखें कि हमारा जो विश्वास है वो बदलाव को हटाएगा नहीं। But our faith is to equip us in the time of difficulties. पर हमारा जो विश्वास है हमें वो बनाएगा भारी कठिन समय With के courage and with hope. हिम्मत के साथ में और आशा के साथ। With courage and in hope. हिम्मत के साथ और आशा के साथ। Amen? Amen. Amen? Amen. People are awake. Thank you. The third point. तीसरी बात, Trusting in God's plan for our future. परमेश्वर के जो विचार हमारे लिए है, You know, I भविष्य heard के लिए उस पर भरोसा करना। so many people say, I do not know what God's plan is for me. और बहुत लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्य के लिए क्या रखा है। And I get irritated. और मुझे बहुत चिड़चिड़ा महसूस होता है। I don't know what is in store for me. अब लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। God has called me for this only. I think I will remain here only. मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे किसी बात के लिए बुलाया और मैं यहीं पे रहूंगा। Many times we speak so lightly. और हम बहुत ही हल्की तरह से बात हमेशा करते हैं। And we do not know what we speak. हम जानते भी नहीं कि हम क्या कह रहे You हैं। are declaring negative things in your life. आप नकारात्मक बातें खुद के ही जीवन पर घोषित कर रहे हैं। And when the negative thing, as I spoke last time, when the negative thing, the spirit world hears, same thing will happen. तो जब नकारात्मक बातें जो है वो आत्मिक स्तर सुनता है तो वैसे If ही your सब होगा। situation is not good, अगर आपकी परिस्थिति सही नहीं है, if you do not find a plan, अगर आपको प्लान नहीं दिख रहा है, योजना if नहीं you बना, don't find a plan for your life, आपके जीवन की योजना आपको नहीं turn पता, your scriptures आपके वचन को to आप Jeremiah 29 and verse 11. इनमें 29:11 को आप It पढ़िए। says, for I know the plans I have for you. वचन कहता है कि यहोवा की वाणी की जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। Declares the Lord. ये परमेश्वर कहता है। Plans to bring you down. वे हानि की नहीं, No. Plans to prosper you. वे कुशल की है, And not to harm you. वो हानि की नहीं है। Plan to give you a hope and a beautiful future. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Plan to give you a beautiful hope and a beautiful future. और तुम्हारे अंत में जो तुम्हारी आशा है वो सब पूरी करने की है। Favor of God is upon you, church. परमेश्वर की जो दया कृपा है वो आप पे You है। have to declare God's favor over your life, over your family, over your children, over your spouse. You have to declare the favor of God. और इस परमेश्वर के अनुग्रह को आपको अपने जीवन पर, अपने परिवार के जीवन पर, अपने बच्चों के जीवन पर घोषित करना है। When you declare favor upon your children, upon your spouse, upon your family, they will find favor in the outside world. जब आप खुद अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने पति पत्नी पर इस अनुग्रह की घोषणा करोगे तो वो बाहर सांसारिक दुनिया में भी उन पर अनुग्रह होगा। Trust God's plan for your future. जो भी भविष्य के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं उस पर आप Don't plan your own future. खुद का भविष्य आप उसकी योजनाएं ना बनाएं। Book of Ecclesiastes says, हमारे वेडिंग कार्ड पे था। इक्लेसियास्टिक किताब में ऐसा लिखा हुआ है, He makes all things beautiful in my time. In His time, कि वो उसके समय में सारी बातें जो है वो भलाई की उत्पन्न He करता makes है। everything beautiful. वो सब चीज बहुत सुंदर और भला बनाता है। Do not claim, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, this is not happening, that is not happening. No. तो आपको हमेशा कुड़कुड़ाते नहीं रहना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा That है। time, remember Jeremiah 29 and verse 11. तो उस समय आप
हमेशा याद रखना है। Speak loudly. जोर से आपको कहना है। Let the Spirit hear. आपको उस आत्मिक स्तर को सुनाना है। Let the word coming out of our mouth be, mixed up with the Spirit of the Lord. जो भी हमारे मुख से शब्द निकलता है वो परमेश्वर की आत्मा से उससे मेल And when it खाता है। gets mixed up, it will happen. Something will happen for your life. और जब वो मेल खाते हैं तब हमारे जीवन में कुछ तो महान होगा। It will work a wonder for you. वो चमत्कारी रूप में काफी चीजें तुम्हारे You will जीवन be में able to see your life is a life of success. और आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो सफलता का जीवन है। Trusting in God's plans requires us to surrender everything what we have. अगर आपको परमेश्वर की योजना में चलना है तो जो कुछ हमारे पास में हमें उसे परमेश्वर को समर्पित करना है। Our own desires, even our own timelines. हमारी जो खुद की इच्छा है या जो टाइमलाइंस हमने अपने लिए बना के रखी है हमको हर किसी को परमेश्वर के पास समर्पित करना है। In sales we have timelines. सेल्स में हमारे पास में एक टाइमलाइन होती है। For last 39 years I am working in sales. पिछले 39 ईयर से मैं सेल्स फील्ड में काम कर रहा हूँ। And I have taken different challenges of my life. और मुझे हमेशा नई चुनौतियां आती रही है। Every time there is a challenge. और जब भी कुछ नई चुनौतियां आती हैं। And I think I am not going to meet my targets. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मेरे टारगेट्स पूरे I know only one thing, my God will supply everything what I have required. और मुझे एक चीज हमेशा याद होती है कि मेरा परमेश्वर हर चीज जो मुझे जरूरत है वो पूरा Surrender your desires and your timelines to Him. जो भी आपकी इच्छाएं है, जो भी टाइमलाइन है उसको परमेश्वर की Do not say to the Lord, Lord, before March you do these things for me. आप परमेश्वर से ये ना कहें कि परमेश्वर मार्च के पहले ये सब बातें मेरे लिए कर दे। No, don't do all that thing. आपको ये सब नहीं करना। Surrender to Him. जो भी है परमेश्वर को You know how? कैसे? By just saying small line. बस एक छोटी सी लाइन आपको कहनी है। Lord, let Thy will be done. कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। Lord, let Thy will be done. परमेश्वर तेरी इच्छा It's पूरी हो। very important to speak that way. ये आपको इस तरह से बात करना बहुत जरूरी है। Do not crave. आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। Do not cry. आपको रोना भी नहीं। How it will happen? कि कैसा होगा? कैसे चलूं आगे? No. These are, you cannot do that. आपको ये सब नहीं करना। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। You are His child. आप उसके बेटे हैं। He is your father. वो आपका पिता है। The Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा आपके साथ है। He says, I will never leave you, neither forsake you. कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Proverbs 3 and verse 5 to 6 says. 3. तीसरा अध्याय 5वां 6वां वचन। Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Trust in the Lord. 100% trust. कि संपूर्ण मन से हृदय से आपको परमेश्वर पर He भरोसा said, रखना trust है। in the Lord with 99.99% of your heart. वो कहता है कि परमेश्वर पे 99.99% से आप विश्वास करें। Amen. 100% with all your heart. संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करें। And what does it say? और वो क्या कहता है? Lean on your spouse understanding. और वो कहता है कि अपने If you are married. पत्नी का समझ का सहारा लेना। Huh? Lean not on your own understanding. और वो कहता है कि अपने समझ का सहारा न लेना। But in all your ways acknowledge Him. पर हर एक काम में उसको आप स्मरण करें। Whatever you do, whatever success you get, acknowledge Him. चाहे आप कुछ भी करें, जो भी सफलता आपको मिले, आप उसको स्मरण करें। Your wife or your husband will be a good prayer partner, but acknowledge Him. आपके पति या फिर आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ में प्रार्थना साथ में आप करते होंगे, पर हमेशा आपको The परमेश्वर prayers are answered not by your wife or by your husband, but it has been answered by the Father in heaven. आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी पत्नी या पति से नहीं आता, वो हमारा जो पिता है जो स्वर्ग में उससे आता है। So when facing uncertainties of your life, आपके जीवन में जब आप चुनौतियों को आमना सामना you can find comfort in Psalms 32 and verse 8. आपको जो है वो दिलासा जो है वो भजन संहिता 32:8 वचन में मिलेगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. मैं तुम्हें सिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। He says, I will counsel you with my loving eyes on you. वो कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज का ज्ञान दूंगा जिस
जिस तरह से मेरी आंखें तुम्हें देखती है। He says, I will counsel you with my loving eyes, not batata eyes, potato eyes, big eyes, angry eyes. No, with loving eyes. मैं मेरे प्यार भरी निगाहों से आपका ध्यान रखूंगा, काउंसिल करूंगा। He says, I will instruct you. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। Every step you take, He will instruct you. आगे जो भी करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। Wherever you go, He will instruct you. आपको कहाँ जाना है वो भी परमेश्वर आपको He बताएगा। will teach you. वो आपको सिखाएगा। Only thing you have to be students. You have to be good learners of Him. आपको बस एक ही करना है कि आपको अच्छे स्टूडेंट के जैसे वो जो बताएगा उसको सुनना है। This verse assures us something. ये वचन हमें और भी कुछ यकीन दिलाता है That God not only has a plan, कि परमेश्वर के पास सिर्फ एक योजना नहीं but है, He actively guards us and guides us. पर वो जो है आपको आपकी निगरानी भी करता है, आपको गाइड करता He है। will guide you, church. वो आपको गाइड करेगा When you कलीसिया। trust in Him totally. जब आप पूरी तरह से उस पर भरोसा रखते हैं। Sometimes we speak, I trust in the Lord. हम बहुत बार कहते तो है कि हाँ मैं परमेश्वर पर भरोसा करता But हूँ, in my heart says, God, when पर हम दिल में कहते हैं कि परमेश्वर is कब going to change? ये कब बदलने वाला है, I don't know. मुझे नहीं पता। Who is going to answer? कौन जवाब देगा? People are laughing at me. लोग मेरे पे हंस रहे हैं। No. He says, trust in me. परमेश्वर कहता है कि तू बस मुझ पर भरोसा रख। You have to trust in Him, church. आपको बस कलीसिया उसमें भरोसा करना है। Whatever may be your situations of your life, चाहे आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, start trusting in Him. आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। Start trusting in Him. आपको बस परमेश्वर पर भरोसा And रखना है। He will guide you. और वो आपको जो है आपकी अगुवाई He will not leave you, neither forsake you. ना आपको छोड़ेगा ना वो आपको Isaiah छोड़ेगा। 48 verse 17 says, यशायाह 48:17 में ऐसा लिखा Thus है, says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who will teach you to profit. It is not there. This word came in the night when I was sitting all alone. जब मैं अकेला बैठा था तब परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, And when I was praying, God gave me this word. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। Isaiah 48 verse 17, beautiful verse. यशायाह 48:17 वचन जो है ये बहुत सुंदर वचन है, And this is a word which has built my life. और यही वचन है जिसने मेरे जीवन को बनाया है। Thus says the Lord your Redeemer. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इस्राएल का पवित्र है वो यो कहता है, I am the Lord your God will teach you to profit. मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। Whatever situations you are into, He will teach you to profit in that situation. चाहे आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपको आपके लाभ के लिए शिक्षा देगा। The Sensex may go up and down. चाहे जो स्टॉक मार्केट जो है चाहे वो कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, Whatever your investments are failing, no problem. जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है वो अगर उसमें आपको But remember 48:17 He says, I will teach you to profit even in that पर situation. आपको वचन को स्मरण रखना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें भी वो आपको लाभ की शिक्षा देगा। When stock market goes up, many people look at the stock market and say, oh, मेरा पैसा गिर गया. और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाते तो लोग देखते और कहते कि अरे मेरा तो नुकसान हो गया। अरे कभी उठेगा अभी. When will this get up, right? Yes. But remember, church, पर आपको हमेशा कलीसिया का स्मरण रखना है। let that 48:17 come in your mind, in your spirit. ये जो वचन है 48:17 ये हमेशा आपको याद आना It चाहिए। will teach you, it will tell you. He says, I will teach you to profit. आपको ये वचन को याद करना है और हमेशा स्मरण करना है कि वो तुम्हारे लाभ के लिए आपको शिक्षा देगा। Trusting in God's plans does not mean we will not face challenges. अगर हम परमेश्वर के वायदों पे अगर हम विश्वास करते हैं, उसकी योजना पर विश्वास करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मुसीबतों का चुनौती का सामना नहीं करना But even in our challenges of our life, और हमारे जीवन की चुनौतियों में भी He says, I will teach you to profit. वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से तुमको लाभ मिले। If the walls of Jericho are not falling, no problem. अगर यही हो कि जो दीवारें वो टूट नहीं रही, गिर नहीं रही, कोई फर्क He नहीं will give पड़ता। you a new direction to how to bring down that walls of Jericho of your life. वो तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगा, नया डायरेक्शन देगा कि तुम्हारे जीवन की जो यरीहो की दीवारें वो किस तरह से गिरानी If है। the mountains of your lives are not moving, no problem. अगर आपके जीवन के जो पहाड़ है वो हट नहीं रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Trust in the Lord. He will instruct you and teach you how you have to conquer that mountain. आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह से आप उस पहाड़ को हटाएं। There are many of us here sitting this morning. The Lord is showing. Many of us are thinking, God, how these situations in my life are going to change. आज के सुबह आप कई लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जीवन की ये बातें कैसे बदलेगी, How it's going to happen, God. ये कैसे होगा परमेश्वर।
परमेश्वर। As the word came from Pastor Shama also, you are thinking how is going to happen. और जैसे सुबह पांचवान शमा ने भी कहा कि आप जो सोचते कि कैसा होगा, But remember, church, He has not left you alone. He is Amen. standing with you. परमेश्वर जो है कलीसिया में हमेशा आपके साथ है और उसका हाथ आपको धरे है। God says in the book of Isaiah 49 verse 15 and 16. यशायाह 49, 15 और 16 में ऐसा लिखा है। 49, 15 and 16. 49, 15 और 16 में ऐसा लिखा है। Beautiful verse. ये बहुत सुंदर वचन है। Can a woman forget her nursing child क्या एक माता जो है वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती and है not have compassion on the son of her womb? और उसके गर्भ का जो पुत्र है उस पर उसकी दया नहीं होती? Surely they may forget, but I will not forget you. आपकी माता आपको भूल सकती है पर परमेश्वर कभी आपको नहीं He says, भूलेगा। I will not forget you. वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। He has given His son for you, church. उसने अपने इकलौते एक पुत्र को आपके लिए दे दिया He है। has given His son for you and me. उसके पुत्र को उसने दे दिया आपके और मेरे लिए। How can He forget us? वो अपने हमें कैसे भूलेगा? He is the Father in heaven. His eyes are towards me. वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी दृष्टि हमेशा हमारी ओर लगी है। Verse 16 says, see, I have inscribed you on the palms of my hand. वचन 16 कहते हैं कि देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। He has inscribed our name on the palms of His hand. उसने हमारा नाम जो है वो उसके हथेली पर खोदकर लिखा है। When things are not moving properly in your life, look to the right hand of the Father or of Jesus the Son and see your name is written on the right hand. जब आपके जीवन में कोई बात सही से नहीं होती तब परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और यीशु मसीह के हाथ पे देखें कि आपका नाम उसके हथेली पर लिखा है। Your walls are continually before me. आपके जो और तेरी शरणपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Yes, we are always before Him. वो हमेशा उसके सामने होती है। His eyes are not moving away for a second. उसकी जो दृष्टि आपसे एक सेकंड के लिए भी नहीं हटती। The Lord is showing me something. When the child, just starts crawling, और जब बच्चा है वो जो है रेंगने लगता है, the mother is so hyper. तो माता जो है ना वो बहुत हाइपर होती है। She doesn't know how to control that child. वो ये नहीं जानती कि मैं इसको कैसे संभालूं। But remember, her eyes are so much engrossed where the child is going. वो child इधर जाता है तो eyes goes there. तो उसकी जो दृष्टि है वो निरंतर अपने बेटे या बेटी पर लगी रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। His eyes are continuously on us. और वैसे हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमेशा हम पर लगी है। His eyes are watching us. उसकी दृष्टि वो हमें देख रहा है। Never ever doubt come in your mind that Lord, are you watching? In what situation I am in? कभी भी अपने दिल में ये संदेह ना लाए कि और कहे कि परमेश्वर क्या तो सही में मुझे देख रहा है कि मैं कौन सी चीज से गुजर रहा हूँ। God knows everything. परमेश्वर को सब चीज पता है। Not a hair of your head will fall without His knowledge. आपके सर के बाल भी उसके ज्ञान के बिना नहीं It will झड़ेंगे। never fall, church. वो कभी नहीं गिरेंगे। Every hair on our head, He knows how many it is. हमारे सर के हर एक जो बाल है वो जानता है कि वो कितने हैं। Yes, He knows it. वो सब चीज He जानता will है। never allow it to fall. वो कभी उसे गिरने भी नहीं देगा। Then come to Exodus chapter 14. आइए निर्गमन इसके 14वें अध्याय में हम आए। Before I close. खत्म करने से पहले Remember the woman with the issue of blood? आप क्या आपको स्मरण है वो स्त्री Before जो going to लहू Exodus. की बीमारी थी, She had to move forward. उसको आगे बढ़ना था। She had to move. उसको आगे बढ़ना था। She knew Jesus is coming from that way. वो जानती थी कि यीशु मसीह वहां से गुजरने वाले हैं। She didn't stand in one place and said, Jesus, you come near me. और वो एक जगह पे खड़ी होकर उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह आप मेरे पास आए। But she broke every protocol and went and touched the hem of the garment. और सारे जो वहां पे प्रोटोकॉल से तो सब कुछ तोड़ा, वो परमेश्वर के कपड़े के छोर को She just ran from the crowd and she went towards that hem of the garment. और वो भीड़ में से भागकर गए यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छू लिया। Church, however situations you are going through, do not worry about anything. कलीसिया आज के सुबह चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप It may be the worst of the situation. चाहे आपकी परिस्थिति बहुत ही खराब क्यों ना हो, Your own family may be despising you. आपका जो पूरा परिवार है वो अगर आपको तुच्छ जान रहा होगा, But remember, the Lord never despises you. पर आपको ये स्मरण रखने कि परमेश्वर कभी आपको तुच्छ नहीं जानेगा। He's a God who says, I love you. वो खुदा है जो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। He says, I am your father. वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। When the prodigal son came back,
His father did not stay in the house and say, "Oh, let him come to me. He's gone. He was disobeyed me." He didn't say all that thing. उसके पिता ने महल में रह के घर में रह के ये नहीं सोचा कि मेरा पुत्र जो मुझे छोड़ के गया था वो मेरे पास आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। As soon as he saw from far his son is coming, और जैसे दूर से उसने देखा कि उसका बेटा आ रहा है, he ran towards him. तो ये वो दौड़ के अपने बेटे के पास गया। That boy was filthy. वो जो बेटा था वो पूरा गंद से भरा The हुआ boy था। was smelling. उसमें उसके आंख से बदबू आ रही थी। It must be such a bad thing because he was staying with the pigs. उसके शरीर की जो बदबू थी वो इतनी गंदी थी क्योंकि वो जो है सुअरों के साथ रह रहा था। He was staying with the pigs. वो सुअरों के साथ रह रहा था। But his father did not care. पर उसके पिता ने उसकी परवाह नहीं He की। saw him coming from far and he just ran. उसने देखा कि दूर से उसका बेटा आ रहा है, वो दौड़ के उसके पास In गया। the same way the heavenly Father does. और उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी करता है। He runs for you for every time. वो हमेशा आपकी ओर दौड़ता Whenever है। you are requiring him, he runs for you. जब भी आपको कोई चीज की जरूरत होती है वो दौड़ के आपके पास आता है। He will always run for you. वो हमेशा दौड़कर आपके लिए आएगा। Exodus 14 and verse 13 and 14 says, निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 वचन and कहता है, Moses said to the people, और मूसा ने लोगों से कहा, do not be afraid, डरो मत, stand still आप शांत खड़े रहे and see the salvation of the Lord, और परमेश्वर के महान काम को देखें which he will accomplish for you today. जो वो तुम्हारे लिए आज पूरा करेगा। For the Egyptian, when you see today, what you see today, you shall never ever see them again. क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। When people of Israel were brought out, जब मिस्री इस्राएली लोगों को बाहर लेके आया गया मिस्र से, there was Red Sea in front and Pharaoh behind. तो आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। God did not say, now let them go to the promised land. I will leave them. तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब उनको यहाँ से वायदे के देश में जाने दो, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। They started murmuring. वो जो है कुड़कुड़ाने लगे। But God spoke to Moses. पर परमेश्वर ने मूसा से बात की। And Moses told the people of Israel, और मूसा ने इस्राएलियों से कहा, do not be afraid. कि मत डरो। The Lord is saying to you this morning, परमेश्वर आज की सुबह आपसे भी do कहता not है be afraid of any situations of your life. कि आपके जीवन की चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, आपको डरना You नहीं may है। not find the answer today. अगर आपको शायद हो सकता है उत्तर आज ना मिले, Tomorrow it will not come. कल वो आएगा नहीं, But remember, He has not left you. पर याद रखिए कि उसने आपको छोड़ा नहीं है। He says, stand still and see the salvation of the Lord. उसने कहा कि खड़े रहो और परमेश्वर के महान काम को देखो। For the Egyptians whom you see today, क्योंकि जो मिस्रियों को तुम आज देखते हो, for the obstacles you see today, जो भी विपत्ति आज तुम देखते for हो, the mountains you see today, जो भी पर्वतों को आज आप देखते for हो, the walls of Jericho of your life which you see today, जो भी यरीहो की दीवारें आज आपके जीवन में the आप Lord देखते हैं, says to all of us this morning, stand still because I am going to remove that mountains from your तो life. परमेश्वर आज हम सबसे कहते हैं कि आप शांत खड़े रहिए क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के सारे पहाड़ों को हटा दूंगा। And then it says you will never see them again in your life. और वो वचन कहता है कि तुम उसे दोबारा कभी नहीं देखोगे। The Lord will fight for you, church. यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा The कलीसिया। Lord will fight for you. यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। Only thing we have to do is हमको बस एक ही चीज करनी we है, should hold our peace. हमको बस शांत रहना है, We have to hold our peace. हमको बस शांत रहना है। Let not be a turmoil in your mind. आपके जो है सिर में जो है वो दूसरी बातें ना आए, No turmoil. आपको संघर्ष उसमें नहीं करना है। Just remain calm and quiet, knowing. Stand still and know. आपको बस शांत रहना है, चुपचाप रहना है और आपको बस जानना है। For the situations which you are saying today will never ever come back in your life. क्योंकि जो परिस्थिति आज आप देखते हो कभी भी आपके जीवन में नहीं For you are not going to fight that battle alone. आप उस युद्ध को अकेले नहीं लड़ेंगे, The Lord is going to fight for you. वो युद्ध आपके लिए यहोवा लड़ेगा। The Lord is going to fight for you. यहोवा आपके लिए लड़ेगा। Amen. So remember, church, when you walk through the waters, also He is with you. तो कलीसिया हमेशा याद रखिए जब आप पानियों से भी गुजरते हैं वो आपके साथ है। Even as you go through the valley of shadows of death, He says, I will never leave you nor forsake you. जब आप जो है अंधकार की गली से भी जाते हैं तब आपको स्मरण रखना है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि ना वो कभी छोड़ेगा, Church, you ना have to त्यागेगा। move ahead with confidence in your life. आपको हमेशा कलीसिया
से आगे बढ़ते रहना है एक दृढ़ विश्वास के साथ। Move ahead. Do not look behind and say, God, I do not know. No, do not say that was I do not know. Move ahead knowing that the Lord who has chosen you will make it to pass off in your जब life. आप आगे बढ़ते हैं कलीसिया तो आपको दोबारा पीछे मुड़ के ये नहीं देखना, ये नहीं कहना कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। हमेशा स्मरण रखें क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है आगे बढ़ने के You लिए। can face each day आप हर दिन को उसका आमना सामना with कर new सकते हैं। hope, new strength and new trust in Him. आप नई आशा के साथ, नई सामर्थ के साथ और परमेश्वर के भरोसे के साथ आप हर दिन And even सामना कर सकते हैं। unwavering faith. और आपका जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। Remember, church, He is with you continuously. कलीसिया आपको स्मरण रखना है कि वो हमेशा सदैव आपके The साथ God है। of Abraham, Isaac and Jacob says, I am with you. जो परमेश्वर है इसहाक, याकूब का और अब्राहम का, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। When he could give waters from the rock to the people of Israel, we are more than that. You know, He loves us so much, He will provide us everything. जब वो इजरायली लोगों को एक चट्टान से पानी दे सकता है तो हम उसके लिए उससे भी ज्यादा प्रिय है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। Move forward in assurance, आपको हमेशा एक आशा के साथ में आगे बढ़ना not है। wavering assurance. आपको बस डगमगाता A strong assurance that the Lord whom I serve is well able to do something new for me. आपको ये विश्वास हमेशा चाहिए कि जो परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूँ वो मेरे लिए कुछ बड़ी बात करने पर है। Nothing can stop you there. आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। Your life will take a complete turn. आपका जीवन है वो पूरी तरह से बदल You will जाएगा। be able to see success. You will be able to stand before kings and men, and then pull them in God's kingdom. आपको परमेश्वर जो है वो सफलता आपके जीवन में देगा और आपको ऐसे लोगों के सामने, राजाओं के सामने खड़ा रखेगा और आप उनका जीतोगे, उनके विश्वास को जीतोगे, परमेश्वर के पास ले आओगे। Let not your hope be disturbed, आपकी जो आशा है उसको आप डिस्टर्ब ना करें, but let your hope be strong in the King of Kings and the Lord of पर Lords. आपकी जो आशा है वो दृढ़ होनी चाहिए राजाओं के राजा। Come, let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।